Good morning students, how are you? I welcome you in our computer practical class. Today we will demonstrate you how to work in MS Excel. The screen which you are watching, it is the Windows 10 screen. First of all, I will tell you how to open MS Excel in Windows 10. First of all, you have to click on the start button. Then a list of different applications will be opened in front of you. Then you are to go for Microsoft Office. Click on it. It will display you the different icons for the different applications which are available in the Microsoft Office. From that we are to select Excel. Click on the Excel. Now MS Excel has opened. It is the first screen of MS Excel when you open it. After clicking the MS Excel icon, it will display you the first screen which contains different options. Out of all these options, you are to select the first one, that is the blank workbook option, and click on it. When you will click, the worksheet opens now. This is the Excel file and the Excel file is known as a workbook. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हमारा जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स आप लोग बनाते हैं. जैसे कि आप पेंट यूज करते हैं, उसके जो है आपके इमेजेस बनते हैं. पीएमपी इमेज हो सकता है, बिटमैप इमेज हो सकता है. एमएस वर्ड के अंदर आप लोग डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के बनते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट फाइल्स कहलाती है. इसी तरह से जो एक्सेल की फाइल होगी वो आपकी वर्कबुक कहलाती है. और एक वर्कबुक जो है मेनी नंबर ऑफ वर्कशीट कैन कंटेन. इसके अंदर जो है आप काफी सारे वर्कशीट्स जो है जनरेट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्क्रीन ऑफ एमएस एक्सेल वर्कबुक. नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस एमएस एक्सेल. जो एमएस एक्सेल की जो फर्स्ट विंडो आती है आपके सामने, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एंड अदर्स. इट इज नोन एज द मेन्यू बार. व्हेन यू विल क्लिक ऑन द मेन्यू, it contains different options like home, it has its different toolbars. Then insert, it has different, like that wherever you will click, according to that the different buttons on this ribbon will be open. This is known as the ribbon. In this ribbon, different groups has been created. First of all, clipboard, then font group, alignment group, this is the number group, these are the styles, these are the cell properties, and it is the editing group. Below to it, this one, this is named as the name box or address box, you can say it. Now you have three. This is the cross tick effects. This is known as the formula bar. Whatever you will formula apply in the different cells of MS Excel, it will be displayed here. जो आपका यहां पर ये है, ये आपका एड्रेस बार है. जो भी आपकी सेल एक्टिव होगी उसका एड्रेस यहां पर डिस्प्ले होगा. ये आपका फॉर्मूला बार है. इस फॉर्मूला बार के अंदर जो भी आपकी सेल के अंदर जो कंटेंट होगा, चाहे फॉर्मूला है, चाहे कोई नंबर है, चाहे आपका कोई भी अल्फाबेट्स हैं, वो यहां पर डिस्प्ले होंगे. बिलो टू इट, दिस आर द अल्फाबेट्स ABCD. दीज आर नोन एज द कॉलम हेडिंग्स. Do you know column heading, how many columns you have? It has been told you in your videos. You can check them. If you do not find, then you can ask from us. These are known as the column headings. ये हमारे जो है columns की heading या columns के name कहलाते हैं. उसके बाद यहां पर आता है कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5. कितनी आपके अंदर, these are known as the rows. जो ये नंबर्स हैं, हर नंबर जो है एक रो को रिप्रेजेंट करता है. हर रो का इंडिविजुअल अपना एक नंबर होता है और ये रो जितने कॉलम्स हैं पूरी अकॉर्डिंग टू दैट उसकी लेंथ जो आपकी रो की उतनी लंबी होती है. नाउ यू हैव द डिफरेंट रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर सेल्स.
जहां पर आपके रोज और कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। जब भी ये काटेंगे आपस में जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाता है। दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज नोन एज अ सेल। जैसा कि एक सिटी के अंदर आपके घरों के अंदर डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, इसी तरह से जो है जो आपकी वर्कशीट है इनके भी अलग अलग से अपना एक एड्रेस होता है, पर्टिकुलर एड्रेस। और वो एड्रेस बनता है आप लोगों का कॉलम नेम और रो हेडिंग से। तो कैसे पता चलेगा आप लोग कौन सा कॉलम और कौन सा रो है? आप लोग या तो यहां से पहचान लीजिए, जो यहां पर आप क्लिक करते हैं जिस कॉलम के अंदर, जिस रो के अंदर, उसकी हेडिंग आपकी डार्क हो जाती है, ग्रेड हो जाती है व्हाइट की जगह पर। जैसे हमने यहां पर क्लिक किया तो आपका कॉलम एफ है तो ग्रे हो गया, यहां पर 7 है तो 7 का जो है आपका डार्क हो गया। इसका जो एड्रेस है इट विल बी डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स, दैट इज F7। F7 बना कैसे है? कॉलम आपका F है, रो आपकी 7 है, दैट इज इट इज नोन एज द F7 सेल। यही क्यों है, दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि जब हमारी जो एक्टिव सेल होगी जिसकी बाउंड्री डार्क होगी वो हमारी एक्टिव सेल कहलाती है, और उसी एक्टिव सेल का एड्रेस जो है आप लोगों को नेम बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट टर्न आती है आपकी इस बॉक्स की। दिस बॉक्स इज नोन एज द फॉर्मूला बॉक्स या फॉर्मूला बार, आप इस लोगों को इसको कह सकते हैं। जो भी आपकी सेल्स, जो एक्टिव सेल है उसके अंदर जो भी डाटा होगा, चाहे अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं या कोई फॉर्मूला है, वो आपको इसके अंदर दिखाएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के बॉटम साइड की तरफ। यहां पर देखिए बॉटम लेफ्ट साइड के अंदर इट इज डिस्प्लेइंग यू शीट 1। जैसे आपकी नोटबुक के अंदर मैनी पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस आपके नोटबुक के अंदर होते हैं, उसी तरह से जो है आपकी वर्कबुक के अंदर जो एक्सेल की फाइल कही जाती है उसके अंदर जो है आप लोगों की मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप लोग इनको जो है इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको उनको मल्टीपल बनाने के लिए। उसके बाद नीचे आती है, अगर आपको स्क्रीन जो है आपको बड़ी रिकॉर्ड करनी है, जो आप लोगों को काफी बड़ा डाटा डालना है, तो उसके लिए आप लोगों को स्क्रीन को जो है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो है घुमाने की जरूरत पड़ेगी। उस घुमाने को हम बोलते हैं स्क्रॉल करना। उसके लिए हमारे पास 2 स्क्रॉल बार्स दिए हुए हैं। दिस इज स्क्रॉल बार फॉर स्क्रॉलिंग द स्क्रीन अप टू डाउन। तो कैसे होगी? ये देखिए, इसका एरो बना हुआ है कि यहाँ पर एरो बना हुआ है कि यहाँ पर एरो बना हुआ है। ये है नीचे जाने के लिए, स्क्रीन को अप स्क्रॉल करने के लिए आपको स्क्रॉल हो रही है आपकी स्क्रीन। अगर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है डाउनवर्ड्स आती जाएगी। इसी तरह से जो है आप लोगों का यहाँ पर ये वाला स्क्रीन बार पर स्क्रॉल बार पड़ा हुआ है, इसकी जो आप राइट एरो की तरफ क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है राइट की तरफ जाती रहेगी। ये देखिए, वापिस इसके लेफ्ट वाले एरो पर क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करती है, और ये आपकी स्क्रीन जो है यहाँ पर फिर जो है आपकी स्टार्टिंग से आगे इट इज योर फर्स्ट कॉलम, दैट इज नोन एज ए। ये आपका फर्स्ट रो। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर दिखाता है रेडी है, क्या है, मीन्स किस मोड में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपका मोड दिखाएगा जो यहाँ पर इसको कहलाता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फर्स्ट विंडो है, अभी हमने आप लोगों को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हैं कि कहां पर आपकी क्या चीज होती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू एंटर डाटा इनटू अ वर्कशीट। जो भी आपकी एक वर्कशीट है उसके अंदर जो कि आप डाटा की एंट्री कैसे कर सकते हैं वो देखें। अब मैं जा रहा हूं आप लोगों को ये बताने के लिए, एक छोटी सी हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो वर्कशीट हम बनाते हैं। सबसे पहले सपोज करिए मैं यहां पर डालता हूं रोल नंबर। रोल नंबर के बाद आपके रिकॉर्ड में क्या हो सकता है? नेम आ सकता है, उसका फादर्स नेम आ सकता है, फादर्स नेम आप लोग डाल सकते हैं। फिर यहां पर जो है उसका एड्रेस होगा, और यहां पर जो है डेट ऑफ एडमिशन हमने यहां पर डाली। फिर हम यहां पर आए, फर्स्ट जो आपका सेल है उसके अंदर हमने रोल नंबर डाला 1, यहां पर हमने इसका दे दिया
बच्चे का नेम अरमान। फादर्स नेम आप लोगों ने डालना है, हमने संदीप डाल दिया। फिर आता है एड्रेस। एड्रेस जो में आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में डाल रहा हूँ कुरुक्षेत्र। सपोज करिए डेट ऑफ बर्थ, डेट डालने के लिए हमने क्या करना है 10/2/2003 सपोज करिए, ये हमने डाल दिया। इसके अंदर क्या होगा, अब आपके जो हमने कॉलम हेडिंग्स डाले थे वो कट रहे हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर क्लिक किया। 1 क्या है हमारा ठीक आ रहा है, नेम छोटा है वो भी आ गया। अब फादर्स नेम कट रहा है, एड्रेस कट रहा है। उसके लिए आप लोग जो है सेल्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर जब आप कॉलम रोज, रो की हेडिंग जो है उनके बीच में जो लाइन है आपकी कॉलम की, वहां पर जब लेकर के आते हैं तो आपका कॉलम का जो माउस का जो कर्सर है वो डबल एंडेड बन जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरह का प्लस का साइन है, जब इसके बीच में लेकर आते हैं डबल एंडेड बन जाता है। तो इसको आप दाईं तरफ की करेंगे या राइट साइड की तरफ उसको ड्रैग करते हैं तो आपका कॉलम बड़ा हो जाता है, और लेफ्ट साइड की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो ये आपका छोटा हो जाता है। सही, हमारा रिक्वायर्ड बड़ा चाहिए हमें, हम लेकर के आए। इसके ऊपर माउस का जब कंट्रोल आएगा तो आपका जो कर्सर है वो डबल एंडेड बन चुका है। चाहे लेफ्ट में ड्रैग करिए या राइट में करिए। राइट करते हैं हम बड़ा करने के लिए और लेफ्ट करते हैं छोटा करने के लिए। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर आप कर सकते हैं। अब डेट ऑफ एडमिशन है, यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब देखिए आपका फॉर्मेट जो है ये कंप्लीट हो गया। हम फिर आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड हमने रोल नंबर 2 लिया। यहाँ पर जो है हमने मोहित डाल दिया। फादर्स नेम जो कि हमने डाला मिस्टर अजय। एड्रेस इसका हमने डाल दिया अंबाला का। डेट ऑफ एडमिशन हम डाल रहे हैं इसके अंदर 2020। सेम इसी तरह से जो कि आप लोग रोल नंबर, मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। 3 के बाद जो है यहाँ पर उसके बाद एडमिशन डेट जो कि हमारी हो गई है 5/5/20। ये आपकी डेट यहाँ पर आ गई। इस तरह से जो कि आप लोग इसको बना सकते हैं, अपना डाटा की एंट्री कर सकते हैं। डाटा की जब आपकी एंट्री हो जाएगी उसके लिए, उसके बाद अगर आपका डाटा के अंदर जो आप लोगों ने इसकी डाटा की एंट्री की है, सपोज करिए कोई भी आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या आपका एड्रेस गलत हो जाता है, उसको आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसके ऊपर जस्ट जाकर जहां भी जाएंगे माउस का बटन क्लिक कर दीजिए, अपना कंट्रोल वहां लेकर के जाइए। सपोज कर आपने यहाँ कुरुक्षेत्र नहीं देना है तो यहाँ पर आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं सेक्टर 5 KKR। अब क्या पहले वाला हमारा चला गया। अगर आपने उसी को ठीक करना, स्पेलिंग एरर है, तो उसके लिए जो कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर या तो डबल क्लिक कर दीजिए, कर्सर बीच में आ गया, आप उसको लेफ्ट राइट में जाएंगे और उसके अंदर जो है आप लोग ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। या फिर जो है उसको आप लोग यूज कर सकते हैं, इसका हम इससे बाहर आ गए, यहां पर आए F2 की प्रेस कर दीजिए अपने कंटेंट को एडिट करने के लिए। देखिए फिर कर्सर जो है वहीं पर आपका पहुंच गया है। मीन्स प्रेस F2 टू एडिट द कंटेंट और डबल क्लिक इन द सेल विच डाटा यू वांट टू एडिट। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख करके जब उसको आपने दोबारा से रीटाइप करना है, अब जस्ट क्लिक करेंगे और टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, वो आपका जो है ओवरराइट हो जाएगा, पहले वाला हट जाएगा, नेक्स्ट वाला नया वाला आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।